Okay, so today let us discuss one small topic but very important topic from the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, class 11. The topic is what? Fajans rule. So many questions you may be asked in different exams, board exam or competitive exams, on this topic, Fajans rule. So this was formulated by Fajans in 1923. So this rule is used to predict whether a chemical bond is expected to be predominantly ionic or covalent. The bonds, ionic bond or covalent bonds, they may not be 100% ionic or 100% covalent. The covalent bonds may have some ionic character as well as the ionic bonds also may have some covalent characters. And you know what is the difference between covalent bond and ionic bond? Covalent bonding, ionic bonding. When two oppositely charged ions are brought together, the nature of bond between them depends upon the effect of one ion on the other. Let us discuss. You see, we know covalent bond. If in covalent bond where mutual electron sharing is there, so covalent means what? The electron cloud or the electron pair between two atoms. Here this electron cloud is equally utilized by the two atoms, two bonded atoms, and the electron cloud, if the electron cloud is uniformly distributed around this bond, then the bond will be non-polar covalent bond. Now if the electron cloud from the covalent bond will be shifted towards a particular atom, then the bond will be polar covalent bond and the molecule may be polar molecule, like this. Electron cloud goes right hand side here, so the atom, this may be more electronegative, that's why it attracts the electron cloud towards itself. So this side there will be delta negative, this will be, there will be delta positive. Clear? But in case of ionic bond, you know, two oppositely charged ions are there and there is electrostatic attraction between two oppositely charged ions. Whereas in covalent bond there is, you know, overlapping of the orbitals. So ये ऑर्बिटल ओवरलैप्ड होके जो है बॉन्डिंग हुआ है, दैट्स वाई कोवेलेंट बॉन्ड है. नाउ polarizing power and polarizability, very important. So what is the polarizing power? It is the ability of a cation to distort an anion. Suppose you have a cation like this, cation, and this one is what? Anion. So the nucleus of the cation, that is positive charge, it will attract. cation मतलब क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा है. और एनायन में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो इसीलिए एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो सकता है, and this cation can attract the electron cloud towards itself. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसा अट्रैक्ट कर सकता है. So it was ionic bond, but due to this polarization of anion,
द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी ओवरलैप्ड। तो ये जो एक ओवरलैपिंग रीजन हो जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग जैसे ही हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जा रहा, कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? तो whenever the cation will distort or pull the electron cloud from the anion, then due to this overlapping of atomic orbitals, the ionic compound may develop some covalent character. So this ability of cation to attract the electron cloud of anion, to distort the electron cloud of anion, is called its polarizing power. So the factor, the ability of the cation, it will depend on the charge and radius. कितना छोटा है और चार्ज कितना है। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है किसका, कैटायन का, तो उसका एट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे हाई पोलराइजिंग पावर। और एनायन का केस में क्या है, एनायन का केस में साइज जितना बड़ा होगा, लार्जर एनायन, वो इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अगर लार्जर एनायन है और उसमें चार्ज भी ज़्यादा है, लार्जर एनायन चार्ज ज़्यादा, तब क्या होगा, लार्जर एनायन चार्ज ज़्यादा मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है विद कंपेयर टू प्रोटॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होगा तो उसका अपना न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसका साइड में जो कैटन है वो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसा एक एनायन जो कि लार्जर साइज होगा, लार्जर साइज और ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो वो होगा हाईली पोलराइजेबल। तो ये उसका हाईली पोलराइजेबल नेचर का होगा। द एनायन विल बी पोलराइजेबल एंड कैटायन विल बी पोलराइजिंग। क्लियर? कैटायन पोलराइज करेगा, एनायन पोलराइज्ड होगा। तो एंड दिस इज द रीजन ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयन्स तो था सेपरेट, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में था दो आयन्स, बट ड्यू टू दिस पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है एक तरफ शिफ्ट हो जा रहा है एनायन का टुवर्ड्स कैटायन, एक ओवरलैपिंग भी हो रहा, तो ऐसा एक कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें आ जा रहा है। ओके, हाँ, तो ये डायग्राम है हमारे पास, ये देखो कैटायन एनायन, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है, नो पोलराइजेशन, कैटायन एनायन। बट अगर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे आ गया, देखा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कैटायन की तरफ आ गया तो हम लोग उसको बोलेंगे पोलराइज्ड एनायन। तब ये एनायन जो है वो क्या हुआ, पोलराइज्ड हो गया, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ जाके ओवरलैप हो गया। ओके, नाउ एक बॉन्ड जो है आयोनिक बॉन्ड, वो कोवैलेंट कब होगा, तो ये हम लोग अभी बोले हैं कि जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर कब ज़्यादा होगा, जब उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मीन्स व्हाट, साइज छोटा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होगा, और चार्ज ज़्यादा, तब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो इसलिए बोलता है स्मॉल कैटायन अगर होगा तो कोवैलेंट कब होगा, स्मॉल कैटायन लेस देन 100 पिकोमीटर बोला जा रहा है रेडियस। देन लार्ज एनायन, एनायन बड़ा होगा, एनायन बड़ा, एंड हाई चार्जेस, दोनों में ही, दोनों में चार्ज ज़्यादा अगर होगा, जितना चार्ज ज़्यादा होगा, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज, एनायन का नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब कि 2+, 3+, इस टाइप का कैटायन, और मान लीजिए 2-, 3-, इस टाइप का जो एनायन है, तो ऐसा कंडीशन होगा, आइडियल कंडीशन हो जाएगा फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन एंड हाई चार्जेस ऑन आइदर ऑफ द आयन। कोई भी, किसी भी आयन, कैटायन हो एनायन हो, जितना ज़्यादा चार्ज वाला होगा उतना वो दोनों का कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर? आयोनिक कैरेक्टर में ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट बोलेंगे, लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, लो चार्जेस, तो ऐसा कंपाउंड आयोनिक होगा।
एंड यू नो, आप क्लास 10th में पढ़े हो कि कोवलेंट कंपाउंड्स का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का ऑपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो कोवलेंट कंपाउंड का कम होता है जनरली, आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, जनरली आयोनिक कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल है, कोवलेंट कंपाउंड जनरली वाटर में लेस सॉल्युबल होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिपेंड करेगा वेदर द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट और आयोनिक। ठीक है, तो हम लोग अभी फैजन्स रूल में ध्यान देंगे कि कोवलेंट कब होगा, कोवलेंट। तो ये कंडीशन हम लोग को याद रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, छोटा वाला कैटायन होना चाहिए, बड़ा वाला एनायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, कैटायन पॉजिटिव आयन। ठीक है, हम लोग याद रखने के लिए होता है कैटायन। देखो कैटायन, देखो इधर एक तो प्लस साइन दिख रहा है ना, तो कैटायन माने पॉजिटिव, कैटायन मीन्स पॉजिटिव वाला। बच्चों लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है कौन सा कैटायन है। तो मतलब कैटायन छोटा और एनायन जो है बड़ा, ऐसा चाहिए हमें। दिस इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर कोवलेंट करेक्टर। एंड हाई चार्ज, दोनों में ही ज़्यादा जितना चार्ज होगा उतना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ फैजन्स रूल में यही बात को क्या कहना है। देखो भाई, पोस्टुलेट्स अगर ऐसे बोलेंगे हम लोग, पोस्टुलेट नंबर 1, तो ये बोला जा रहा है कि जो पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी that enhances the formation of covalent bond is favored by the following factors। कोवलेंट करेक्टर फेवर कब करेगा? नंबर 1 स्मॉल कैटायन, वही वाला बात विद एग्जाम्पल बोला जा रहा। सपोज यू हैव लिथियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो लिथियम ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड में लिथियम और पोटेशियम कैटायन है, एनायन कॉमन, ब्रोमाइड आयन। लिथियम आयन का साइज़ कितना है? लिथियम आयन 90 पिकोमीटर, पोटेशियम आयन 152 पिकोमीटर। तो छोटा वाला कैटायन लिथियम है। ठीक है, तो इसीलिए जो लिथियम ब्रोमाइड है उसका कोवलेंट करेक्टर होगा। ठीक है, तो साइज़ का तो हम लोग को पता है, साइज़ का जो पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्रुप 2 मेटल्स है उसमें जैसा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो सबसे छोटा वाला देखो, सबसे छोटा वाला जो है वो बेरिलियम आयन है, Be2+, 31 पिकोमीटर बोल रहा है। ठीक है, तो बेरिलियम का जो भी मान लो कि बेरिलियम का क्लोराइड जो होगा, ठीक है, तो उसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा बेरिलियम। ठीक है ना, BeCl2, तो उसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट उसका 405 डिग्री सेल्सियस, बेरिलियम Be। और बेरियम का देखो, बेरियम क्लोराइड अगर बोलेंगे तो उसका आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस किस तरफ? जब साइज छोटा हो रहा है, इस तरफ। तो बेरियम क्लोराइड जब हो जाएगा मान लो तो उसका आयोनिक करेक्टर ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ठीक है, मतलब जो साइज ऑफ कैटायन जब हम लोग बोल रहे हैं ना, साइज ऑफ कैटायन, तो वो प्रोपोर्शनल टू बोलेंगे कैटायन छोटा तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा। ठीक है, 1/, कोवलेंट करेक्टर बोल देंगे, 1/, कोवलेंट करेक्टर बोल सकते हैं। और कैटायन छोटा अगर होगा, ठीक है ना, कैटायन छोटा हुआ तो कोवलेंट ज़्यादा, कोवलेंट कैटायन जितना छोटा होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा। कैटायन छोटा, मेल्टिंग पॉइंट कम, तो मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोवलेंट ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। ओके, एनायन बड़ा होगा तो देखो, एनायन अगर हम लोग बोल देंगे एनायन, जैसे देखो ग्रुप 17 फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड आयन का साइज़ सबसे बड़ा है। ठीक है,
तो इसमें तुम्हारा अगर मैं कैल्शियम हैलाइड का एग्जांपल ले रहा हूँ इस केस में, कैल्शियम हैलाइड, तो कैल्शियम हैलाइड में मेल्टिंग पॉइंट देखो, अगर कैल्शियम फ्लोराइड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 1352 डिग्री सेल्सियस, जहाँ की कैल्शियम आयोडाइड जब हो रहा मेल्टिंग पॉइंट ओनली 575 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लार्ज एनायन होने से जाके कोवेलेंट होगा, लार्ज एनायन। ओके, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी तुमको पूछ देगा कभी कभी, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, CaF2 CaI2, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ये कोवेलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट कम, कौन कोवेलेंट है, दिस वन कोवेलेंट, कैल्शियम आयोडाइड, तो कैल्शियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट कम, कैल्शियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। और कोवेलेंट करेक्टर आयोडाइड के केस में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, इसका कौन सा ज़्यादा है, आयोनिक करेक्टर ज़्यादा, क्लियर, गॉट इट, ओके। देन लार्ज चार्जेस, साइज तो हो गया, कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा, तब कोवेलेंट होगा। लार्ज चार्जेस, ठीक है, देखो इसमें हम लोग लेफ्ट साइड में जो एग्जाम्पल लिया, एनायन सब इक्वल लिया, Cl माइनस क्लोराइड, बट कैटायन में Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, तो Al3 प्लस में देखो चार्ज ज़्यादा है, ये है 3 प्लस, दिस इज 2 प्लस एंड दिस इज 1 प्लस। जब चार्ज ज़्यादा है तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, देखो एनायन को ज़्यादा अट्रैक्शन कर रहा है, एनायन को ज़्यादा अट्रैक्ट करा तो पोलराइजेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा, दैट्स वाई एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। ये जो AlCl3 जो है वो कोवेलेंट करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली साइज तो फैक्टर इधर राइट साइड में साइज फैक्टर है, अगर कैटायन इक्वल है तब हम लोग एनायन का साइज भी देखेंगे, तो Br माइनस बड़ा साइज का है, ठीक है। नाउ और एक टॉपिक है, और एक रीज़न है कोवेलेंसी कब बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का चेक करना है। अगर मान लो कि कैटायन विथ सेम चार्ज एंड साइज, ठीक है, कैटायन जो है दोनों केस में साइज और चार्ज सब बराबर है, तब हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अगर इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है N-1 DN NS0, जिसको हम लोग बोलता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन, बाहर में कितना होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहाँ की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है हमें पता है NH2NP6 होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो विच इज़ कॉमनली फाउंड इन एल्काली मेटल में NH2NP6 है। बट अगर हम देखेंगे जो मान लो कि जैसे कि कॉपर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेक कर लो कि कॉपर प्लस अगर होगा, सपोज यू चेक कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10, ठीक है, और इसका 4s तो 0 होता है, फिर इसके पहले क्या है 3s2 3p6, ठीक है ना। तो टोटल जो है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसको बोलता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 18 इलेक्ट्रॉन है, स्यूडो नोबल गैस। Ag प्लस भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, Ag प्लस Au प्लस, इस टाइप का जो कैटायन है, ठीक है। तो उसमें देखो D इलेक्ट्रॉन F इलेक्ट्रॉन ये सब अगर आएगा तो हम लोग को पता है D इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो क्या होगा, वो कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है ना, जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तब ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। तब इसका जो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कैटायन का ज़्यादा होगा, कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा हो गया न्यूक्लियर चार्ज, तो वो एनायन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर। तो इसीलिए जो हमारे पास जैसे कि कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, तो ये लोग का जो क्लोराइड होता है उसका
मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम है, जहाँ की सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वो लोग का जो क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हुआ कि जब स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा कैटायन का, मतलब जो कैटायन का लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिया कॉपर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्यूडो नोबल गैस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में होता है। डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोलता है, तब वो एनायन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारे पास मान लो कि CuCl AgCl ये सब कोवैलेंट कैरेक्टर, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट कैरेक्टर रहता है, ठीक है। ओके, नाउ तो फिफ्थ पॉइंट, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था, साइज ऑफ कैटायन छोटा होने से कोवैलेंट ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट में बोला साइज ऑफ एनायन बड़ा होने से कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट में क्या बोला था, थर्ड पॉइंट में चार्ज, हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, तब भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट में हम लोग आके बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन, अगर दोनों केस में ही कैटायन अगर लगभग इक्वल साइज का है तब हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन में एक स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बोला, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना उसमें दिखता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जहाँ की अल्काली मेटल लोगों का जो है उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसीलिए जो हैलाइड ट्रांजिशन मेटल का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, वो लोग का कोवैलेंट कैरेक्टर है। क्लियर। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डी में होगा, और डी में अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो कैटायन विल बी हाई पोलराइजिंग, इट विल हाईली पोलराइज द एनायन, ठीक है, तब कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में और भी एक चीज़ बोला कि मीडियम, ये जो कंपाउंड है ये कौन सा मीडियम में रख रहे हो, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलर मीडियम इज हाई, पोलर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, तो इन पोलर मीडियम ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलराइजेशन डज नॉट ऑकर, ठीक है। अगर मीडियम पोलर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसमें पोलराइजेशन ठीक से नहीं होता है, बट नॉन पोलर मीडियम में जब लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसमें पोलराइजेशन इजी होता है, दैट्स वाई इन नॉन पोलर मीडियम द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, दिस इज द कंक्लूजन, इन नॉन पोलर मीडियम कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, नाउ देखो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलो किसी भी एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाएगा। अगर ये सारे कर लिया तो समझ के हो गया टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा। देखो मैंने रूल 1 में बोला था स्मॉलर कैटायन में कोवैलेंट होगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन बोला व्हाई इज LiBr मोर कोवैलेंट देन KBr, सिंपल, Li प्लस का साइज छोटा है, साइज छोटा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो हाई पोलराइजिंग पावर होगा, हाई पोलराइजिंग पावर होगा तो डिस्टॉर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, एनायन का, तब जो है ओवरलैपिंग होगा तो हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, इसीलिए लिथियम ब्रोमाइड कोवैलेंट, ठीक है। अमॉन्ग्स द एल्काली क्लोराइड व्हिच वन इज़ द मोस्ट कोवैलेंट, एल्काली मेटल क्लोराइड, एल्काली मेटल क्लोराइड, तो एल्काली मेटल क्लोराइड में कौन सबसे ज़्यादा कोवैलेंट है, क्लोराइड बोल दिया तो हम लोग लिथियम को ही लेंगे, LiCl, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। लिथियम सबसे छोटा है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी, तो ऐसा जब तुमको अरेंज करने देगा LiF NaF KF RbF CSF, तो तुम लोग क्या करेगा उसमें लिथियम, ये जो ग्रुप 1 है ये पहले हमको पीरियडिक टेबल थोड़ा याद रखना ही पड़ेगा कि ग्रुप 1 में कौन कौन होता है वो याद करना पड़ेगा।
तो हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ऐसा होता है। तो यहाँ तो ऐसा ऑर्डरली दिया है, ठीक है। और एनायन तो इक्वल है सबका, है ना, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, ठीक है। तो हम लोग को पता है जो कैटायन छोटा होने से कोवैलेंट, कैटायन छोटा होने से कोवैलेंट, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन होगा, लिथियम फ्लोराइड। उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, तो लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट इस सीरीज़ में कौन होगा, लिथियम फ्लोराइड, ओके, क्योंकि उसमें कैटायन का साइज सबसे छोटा है। अगर एनायन सब इक्वल है, एनायन तो F- है यहाँ, तो हम लोग कैटायन चेक करेंगे, कैटायन छोटा होने से कोवैलेंट, ओके। नाउ अब कुछ क्वेश्चन है एनायन लार्जर, यस एनायन लार्जर, देखो एनायन को चेंज कर दिया गया, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंसी। तो एनायन हमको क्या होना चाहिए, कोवैलेंसी में बड़ा होना चाहिए। आयोडाइड बड़ा होता है, हम लोग को पता है, ग्रुप 17 वाला है ना, ये लोग है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन तो सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट इसमें Na होगा, Na, फिर NaBr, NaCl, NaF, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन। कैल्शियम आयोडाइड हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन कैल्शियम फ्लोराइड, एक ही चीज़ हुआ, कैल्शियम आयोडाइड इज लोअर मेल्टिंग, माने मोर कोवैलेंट करेक्टर है, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट। सो कैल्शियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है वो पूछ रहा है, कोवैलेंट करेक्टर क्यों ज़्यादा है, वैसा नहीं पूछ के इनडायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम है। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड देख लेंगे। आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें बेरिलियम है कैटायन, और एनायन चेंज हो रहा है। तो एनायन में बड़ा होगा तो क्या होगा, कोवैलेंट, और छोटा होगा तो आयोनिक। तो एनायन छोटा लो तो आयोनिक होगा। सबसे छोटा एनायन है BeF2, फ्लोरीन सबसे छोटा है, ठीक है, और BeCl2, देन BeBr2, देन BeI2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ हमारा क्या होगा, इस तरफ जाने से जो है आयोनिक होगा, आयोनिक होने से इस तरफ जब जाओगे तुम सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, सॉल्युबल होगा ये लोग, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ओके। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। आयोनिक मतलब क्या है, एनायन छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज मोर सॉल्युबल, Ag2S, Ag2O, ठीक है। कैटायन सिमिलर है, सल्फाइड आयन और Ag2S, और एक क्या है Ag2O। देखो इस केस में क्या होगा कि एनायन चेंज हो गया, इस केस में एनायन है S2-, इस केस में है O2-। तो एनायन बड़ा कौन सा है देख लो, हाँ एनायन बड़ा तो ऑब्वियसली ये वाला है, ये तो छोटा साइज का है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे सल्फर होता है, ग्रुप 16 में ऐसा होता है, ठीक है। तो एनायन बड़ा होने से कोवैलेंट होता है, तो ये कोवैलेंट होगा, और ये कंपैरेटिवली आयोनिक होगा इफ़ यू कंपेयर, ठीक है। तो सॉल्युबल कौन होगा, आयोनिक वाला, तो ये सॉल्युबल होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 इजी, ठीक है। साइज ऑफ द एनायन डिसाइडिंग फैक्टर। सो व्हाई डज AgI मोर कोवैलेंट देन AgCl, वेरी सिंपल, AgI में I- है बड़ा साइज, और इसमें ये छोटा साइज है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, क्लियर। लार्ज चार्जेस, हाँ देखो अब ये क्वेश्चन को देखो, FeOH2, FeOH3, दोनों में तो Fe दिख रहा है, दिस वन इज एक्चुअली Fe, बट इस केस में Fe2+ और 3+ है, तो हाई चार्ज होने से कोवैलेंट,
और लेस चार्ज होने से आयोनिक, लेस चार्ज होने से क्या होगा आयोनिक, तो मोर सॉल्युबल माने आयोनिक में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा FeOH2, क्योंकि उसमें क्या Fe2+ है लेस चार्ज वाला, ठीक है। तो लेस चार्ज होगा तो आयोनिक होगा कंपैरेटिवली, कंपेयर ओनली नो, और आयोनिक मोर होगा तो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल, ठीक है। ओके, हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोला AgCl का मेल्टिंग पॉइंट 455 डिग्री सेल्सियस, वाइल दैट ऑफ KCl है 776 डिग्री सेल्सियस, बट दोनों का क्रिस्टल रेडियस जो ऑलमोस्ट सेम है, किसका Ag प्लस K प्लस, और क्लोराइड भी तो बराबर, वहाँ क्लोराइड तो है, दोनों में ही क्लोराइड है। तो इस केस में कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 वाला आ रहा हूँ पहले, हाँ 10 रह गया, 10 बोल देता हूँ बाद में। तो AgCl और KCl समझ गया, उसमें एनायन बराबर है, कैटायन का साइज भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम। तो उस केस में हमको वही वाला कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, स्यूडो नोबल गैस 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Ag+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर के नीचे सिल्वर होता है ना, तो इसमें 4s2 4p6 4d10 ऐसा करके कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्यूडो नोबल गैस है ना। तो इसीलिए इसमें डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा Ag+ का, तब Ag+ जो है Cl- को ज़्यादा पोलराइज करेगा, इसलिए AgCl का कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, और कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, और इस केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, वेरी इजी। ओके, और एक क्वेश्चन स्किप हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, HgCl2 CaCl2 मोर कोवलेंट, हाँ Hg2+ देखोगे, Hg2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जो HgCl2 बोल रहे हैं ना, तो इस केस में Hg2+ का वही वाला स्यूडो नोबल गैस होगा, स्यूडो नोबल गैस, ठीक है। तो Hg का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोशिश करेगा, Hg तो जिंक वाला ग्रुप में है, जिंक का फैमिली जो है ग्रुप नंबर कितना है 12, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है। तो उसमें भी तुम्हारा जो है वही 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ओके। हाँ देखो, जिंक और मैग्नीशियम दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, हैविंग सिमिलर साइज, बट ZnCl2 इज मोर कोवलेंट, बात वही है, सेम सिचुएशन है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन वाला है ना, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, तो इसलिए इस केस में भी जिंक 2+ जो होगा उसका 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, जिंक 2+, तो हाइपोलराइजिंग होगा वो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस भी कभी कभी करते हैं ये लोग कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कितना है, ठीक है। तो आयोनिक करेक्टर मीन्स जैसे कि म्यू डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो वाला सिम निकाल देंगे हम लोग, म्यू ऑब्जर्व्ड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 करने से परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बोला गया कि KBr लेके यहाँ एक कोई कैलकुलेशन किया, तो KBr का डाइपोल मोमेंट जो है ऑब्जर्व वैल्यू कितना है KBr, जिसमें म्यू ऑब्जर्व्ड है 10.41 dBi, ओके। कितना किलोमीटर वो भी दिया है, दोनों यूनिट में दिया है, विच बीइंग क्लोज टू द अपर लेवल ऑफ 11 इंडिकेट्स दैट इट इज़ हाईली पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर वैल्यू डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज़्यादा है। नाउ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन K+ एंड Br- इज 282 पिकोमीटर, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये जो K+ और Br- ये जब मान लो ऐसा रहता भी है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 282 पिकोमीटर, ठीक है। अच्छा, ना हम लोग अभी इसमें क्या करते हैं, जो इसका जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करके अगर निकालेंगे, एज्यूमिंग इट्स व्हाट,
इट इज़ 100% आयनिक। 100% आयनिक तब तो इधर +1 उधर -1 होगा। अगर ये 100% आयनिक तो इस तरफ +1 इस तरफ -1 होगा। तो म्यू का तब फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना डाइपोल मोमेंट, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज तो वन इलेक्ट्रॉन का मामला हो गया इस केस में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस तुमको दिया है 282 पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर से हम लोग उसको मीटर में चले जाएंगे 10⁻⁻12। तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13.54 डिवाई। ठीक है, तो इज द कैलकुलेटेड एज्यूमिंग केबियर 100% आयोनिक। अगर ये 100% आयोनिक होता, मैं +1 -1 पकड़ लिया, पूरा चार्ज सेपरेट एकदम, इसमें +1 इसमें -1, 100% आयोनिक। तब 100% आयोनिक होने से म्यू का फार्मूला तो E इंटू डी होता है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला देखो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाई हो गया, तो उसमें हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू आया इतना। अगर ये 100% एज्यूम किया, बट एक्चुअली इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो कितना है, इतना है डाइपोल मोमेंट का। 100% आयोनिक होने से इतना, इसका मतलब तो परसेंट आयोनिक करेक्टर, परसेंट आयोनिक करेक्टर कितना होगा, कितना परसेंट आयोनिक हो जाएगा, म्यू कैलकुलेटेड म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड। कैलकुलेट जो हम लोग क्या, एज्यूमिंग 100% आयोनिक, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है 13.54, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 10.41। ठीक है, तो इंटू 100 करना है, तब तेरे को आंसर आ जाएगा कितना, परसेंट आयोनिक करेक्टर 76.87, इतना परसेंट आयोनिक है। ठीक है, मतलब कोवलेंट करेक्टर कितना हो जाएगा फिर, परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 76.87, दैट इज़ 23%। ठीक है, तो केबियर जो कंपाउंड है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है, तो 76.87% आयोनिक है। तो इसमें हमको कैलकुलेशन कैसे करना है, डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व बाय डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व तुमको दिया रहेगा, उसका वैल्यू कितना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जैसे कि यहाँ 10.41 डिवाई है, 10.41 डिवाई ऑब्जर्व वैल्यू, और कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग जब करेंगे, यू कैन एज्यूम द कंपाउंड इज 100% आयोनिक। सो 100% आयोनिक मीन्स +1 -1 चार्ज है। एंड डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन कम, उस तरफ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही लगा देंगे हम लोग, दैट इज 1 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डिस्टेंस तुमको दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट किया पिकोमीटर को, तो कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने, अगर ये 100% आयोनिक होता तो इतना आता उसका म्यू, बट वो 100% आयोनिक नहीं है, इसीलिए उसका म्यू थोड़ा कम आया 10.41। तो परसेंटेज के लिए म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें ये तो कैलकुलेशन एक आया, एक्स्ट्रा बोल दिया, बट ये जो टेबल में जो क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12 क्वेश्चंस जो दिया हुआ यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो हमारा 12 क्वेश्चंस को अगर तुम समझ जाओगे, तब पूरा जो है फैजान्स रूल समझ जाओगे, और कोई तुम्हारा क्वेश्चंस जो है अटकेगा नहीं, सारे हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।